بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ لو دیکھو وہ آ گئی کچرا چننے والی۔ جو ہی وہ اسکول میں انٹر ہوئی، لڑکیوں نے اسے دیکھ کر شور مچا دیا اور کہکے لگا کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا کر کلاس میں چلی گئی۔ باقی وقت وہ کلاس میں ہی رہی۔ بریک ٹائم بھی کلاس سے باہر نہیں جاتی تھی۔ وہ گھر سے اچار کے ساتھ سوکھی روٹی لاتی تھی اور اپنی کلاس میں ہی بیٹھ کر کھاتی تھی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی۔ وہ پورے اسکول میں کچرا چننے والی کے نام سے مشہور تھی۔ اسے اپنی دوست کون بناتا؟ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، لیکن اس میں اعتماد کی بہت کمی تھی۔ اسے ہر سوال کا جواب آتا ہوتا۔ ٹیچر جب اسے سبق سننے کے لیے کھڑا کرتی تو وہ چپ چاپ کھڑی رہتی، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلتا۔ وہی سبق جب اسے لکھنے کے لیے بولا جاتا تو وہ بہت اچھے سے لکھتی تھی۔ ٹیچر جانتی تھی کہ وہ پڑھائی میں اچھی ہے، بس اس میں اعتماد کی کمی ہے، اس لیے وہ اس پر غصہ نہیں کرتی تھی، بلکہ پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی۔ اس کا نام ماروخ تھا۔ وہ اپنے نام کا پرتو تھی۔ اس کا چہرہ چاند سا چہرہ تھا اور اس قدر حسین تھی کہ شاعر پورے کے پورے دیوان اس پر لکھ دیں، لیکن پھر بھی اس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو۔ وہ جب چھٹی کے بعد باہر آئی تب بھی لڑکیاں اس کا مذاق اڑانے لگی۔ وہ آنسو پیتی ہوئی گھر آ گئی۔ جو ہی وہ گھر میں آئی، اس کی سوتیلی ماں چلا کر بولی، آ گئی مہارانی گھر، چلو اب کام پر جاؤ۔ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چلی جاتی ہوں ماں، بہت بھوک لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہارے باپ کے کارخانے لگے یہاں، ہر وقت تمہیں بھوک لگی رہتی ہے، چلو نکلو کام پر جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ ماروخ آنسو پیتے ہوئے یونیفارم بدل کر بورا اٹھا کر چل دی۔ آج اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ سوکھی روٹی بھی آج اسے نہیں ملی تھی، جو پورے دن میں صرف صبح کے وقت اسے ملتی تھی۔ راستے میں اسے ہر طرح کے لوگ ملتے، اس کی نظریں اسے اپنے وجود میں چھید کرتی محسوس ہوتی، مگر وہ خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ اسے اس کام سے شدید نفرت تھی۔ دوسروں کا کچرا چننا آسان کام نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے، کبھی کانچ کے ٹکڑوں سے تو کبھی کسی اور چیز سے۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکی تھی۔ کچرا چنتے ہوئے اسے کچھ وہاں پر پھل نظر آئے۔ پھل تھے تو کچرے میں، مگر صاف ستھرے تھے۔ بھوک سے اس کی آنتیں درد کر رہی تھی۔ اس نے انہیں اٹھا لیا اور جو ہی کھانے لگی کسی نے اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا۔ ایک دم وہ ششدر ہوئی، لیکن پھر اسے اپنا وہم گردانا اور دوبارہ اٹھا کر کھانے لگی تو اسے ایک زور کا چکر آیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ حیران رہ گئی۔ اب وہ کسی کوڑے کے ڈھیر پر نہیں بلکہ کسی محل میں کھڑی تھی، اور اس کے سامنے ایک انتہائی حسین و جمیل انسان کھڑا تھا جو ہمدردی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی اس محل کی طرح شاندار تھا۔ ماروخ مبہوت ہو کر ہر ایک شے کو دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس وقت محل کے باغیچے میں کھڑے تھے۔ یہاں اتنے خوبصورت رنگ برنگے پھول تھے، قسم قسم کے پھلوں کے درخت تھے، ہر شے حسن اور نزاکت میں اپنی مثال آپ تھی۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آئی۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ شاید بھوکی ہیں، پہلے کچھ کھا لیں، پھر باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ اسے لے کر وہ ایک بڑے سے ڈائننگ ہال میں آیا۔ ایک بہت بڑی میز سجی تھی جس پر ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک انواع اقسام کے کھانے تھے۔ یہاں پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اتنی زیادہ ڈشز دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑی جیسے صدیوں سے بھوکی ہو۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بیدار ہو گئی۔ اس نے اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ خاصی دلچسپی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماروخ کے اپنی جانب دیکھنے پر مسکرایا۔ آپ کون ہیں اور میں یہاں پر کیسے آ گئی؟ سب بتاتا ہوں، آپ دھیرج رکھیے اور میرے ساتھ آئیے۔ وہ اسے لے کر دوبارہ سے باغیچے میں آ گیا اور وہاں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
आप समझ तो गई होंगी कि मैं कौन हूँ। मारुख ने सर नफी में हिलाया। मेरा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है और मेरा नाम तैमूर है। क्या? वो तो जैसे उछल पड़ी। हाँ, और आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आपकी तरह मुसलमान हूँ। मैं किसी को तंग नहीं करता, लेकिन आपसे दोस्ती ज़रूर करना चाहता हूँ। वो मुस्कुरा दिया। मारुख उसके जिन होने का सुनकर परेशान हो गई। आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि आपकी मदद करूंगा। आप अपने बारे में बताएं। उसने दोनों हाथों से तैमूर का हाथ पकड़ लिया। वो उसकी सदा पर मुस्कुरा दिया। तुम वैसे ही डर रही हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डर कैसा? आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ ज़ाहिल होने लगा। इस नज़ारे से लुत्फानंदोज़ होने लगी वो। पहाड़ों, समंदरों और दरियाओं और झीलों के आबादियों के ऊपर से गुजर रहे थे वो लोग। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जैसे तुम्हारी दुनिया में घूमने फिरने के लिए पार्क बने होते हैं, वैसे ही हमारी दुनिया में भी इस तरह का एक बाग है। वो इस कदर खूबसूरत है कि तुम सोच भी नहीं सकती। आज मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पहुँच गए। तैमूर ने सच कहा था। वो जगह वाकई बेहद हसीन थी, इतनी कि उसकी तारीफ करते हुए अल्फाज कम हो जाएं। पर हर एक चीज़ इतनी मुनफरिद थी, इतनी खुश जायका, इंसान खाए तो खाता ही जाए। पहले तो पूरे बाग में घूमे फिरे, फिर एक जगह पर थक कर बैठ गए। तैमूर उसे अपने बारे में बताने लगा और शहनशाह जिन्नात का बेटा था वो। अपनी रियासत का शहजादा और होने वाला बादशाह था। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। अचानक उसकी नज़र मारुख की कलाई पर पड़ी। वो चौंक गया। उसकी कलाई पर एक चांद का निशान बना हुआ था, जो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा था। ये कैसा निशान है? मारुख ने बेपरवाही से कहा। ये पैदाइशी है। तैमूर सोचने लगा कि ये निशान किसी इंसान के हाथ पर क्यों कर हो सकता है। उसने सोचा कि वो इस बारे में अपने अब्बा से ज़रूर पूछेगा। फिर वो इधर उधर की बातें करते रहे। जब मारुख को नींद आने लगी तो वो उसे वापस छोड़ गया। घर आते वो नींद की वादियों में खो गई। तैमूर उसे कुछ देर खड़ा देखता रहा। कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पर। वो बाकी लोगों की तरह चालाक और होशियार नहीं थी। तैमूर ने सोचा आज वो उसकी सगी माँ के बारे में ज़रूर पता करेगा। थोड़ी देर बाद वो वापस चला गया। अगले दिन एतवार था। उसकी सौतेली माँ ने उससे कोई काम नहीं करवाया। वो तीनों माँ बेटियाँ खुद ही काम करती रही, यहाँ तक कि नाश्ता बनाकर उसके आगे रखा। मारुख इस काया पलट पर हैरान थी। उसकी सौतेली माँ बहुत नरमी से उसके साथ पेश आ रही थी। फिर दोपहर के वक्त वो उसको लेकर बंगाली बाबा के पास गई और उन्हें अपना माजरा सुनाया। बंगाली बाबा हवसज़दा नज़रों से मारुख को देखने लगा। इतनी देर में तैमूर भी वहाँ पहुँच गया। वो भी मारुख के साथ बैठ गया। उसे आँख के इशारे से कहा कि अब तमाशा देखना। बंगाली बाबा आंखें बंद करके पढ़ाई करने का नाटक करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और कहा कि इस पर एक खबीस आत्मा आशिक हो गई है। इसका इलाज करने के लिए आज इसको आप यहाँ छोड़कर जाओ, कल ले जाना। तैमूर को उसकी आंखों में नाचती हुई हवस साफ नजर आ गई थी। उसका तो गुस्से से दिमाग घूम उठा। उसने आओ देखा न ताओ डंडे से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। बंगाली बाबा उस अचानक आफत पर बौखला गया। मारने वाला नजर नहीं आ रहा था, मगर वो बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। उस मंजर को वहां पर मौजूद लोग खौफ के आलम में देख रहे थे। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। बंगाली बाबा रोते हुए मिन्नतें करने लगा। तैमूर ने उसके कान में आकर सरगोशी की। अभी तो मैं जा रहा हूँ। आज के बाद अगर किसी लड़की को तुमने बुरी नज़र से देखा तो मैं इससे भी ज़्यादा बुरी तरह से पेश आऊँगा। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। उसके बाद बंगाली बाबा वहाँ से ऐसे भागा कि दोबारा कभी उस इलाके में नज़र ही नहीं आया। अब ये दोनों भी घर आ गए थे। उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। उसने बंगाली बाबा का हाल अपनी आंखों से देखा था और सोचा था कि अगर मैंने इसे कुछ कहा तो वो जिन मेरी भी पिटाई करेगा।
وہ اس سے بہت پیار سے پیش آ رہی تھی اور اسے کام پر جانے کو بھی نہیں کہتے تھے۔ اب اس کی اپنی بیٹیاں یہ کام کرتی تھی۔ اس کے 10ویں کلاس کے پیپر ہونے والے تھے۔ کل اس کے اسکول میں پارٹی تھی۔ اس کے پاس پہننے کو کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ جب اس کے پاس تیمور آیا اور رونے کا سبب پوچھا۔ جب اس نے بتایا تو وہ سن کر مسکرانے لگا۔ تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ چلو آؤ، میں تمہیں تمہاری مرضی کی شاپنگ کرواتا ہوں۔ وہ اسے اپنی دنیا میں لے گیا اور وہاں مارکیٹ میں لے آیا۔ ماروخ اس بازار کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہاں ایسی حیران کن چیزیں تھیں جو اس نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ تیمور نے اسے ایک بیش قیمت لباس خرید کر دیا۔ وہ بہت قیمتی اور خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ میچنگ سینڈلز، جیولری، میک اپ۔ وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ گھر میں کیا بتاؤں گی؟ یہ چیزیں میرے پاس کیسے آ گئی؟ تم گھر سے یونیفارم میں جانا، اسکول جا کر چینج کر لینا۔ اس نے چٹکی بجاتے ہی مسئلہ حل کر لیا۔ وہ جب اسکول گئی تو لڑکیوں سے دیکھ کر ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگی۔ وہ گھر سے پرانے کپڑے پہن کر آئی تھی۔ جب وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو اسے دیکھ کر سب لڑکیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایسا لباس ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ اس نے کہاں سے لیا۔ اوپر سے وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس دنیا کی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ لڑکیاں اسے رشک اور حسد سے دیکھ رہی تھی۔ پھر جب پارٹی ختم ہوئی تو وہ کپڑے بدل کر اپنے گھر واپس آ گئی اور اس شاپر کو چھپا دیا۔ رات کو جب تیمور اس کے پاس آیا تو کہنے لگا، تمہارے لیے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے۔ میں نے تمہاری امی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ اسی شہر میں ہی رہتی ہیں۔ بہت قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ماروخ یہ سن کر بے قرار ہو گئی۔ فوراً سے بولی، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ابھی نہیں، صبح لے جاؤں گا۔ پوری رات اسے خوشی کے مارے نیند نہیں آئی۔ اس نے بچپن میں اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ ان سے نہیں ملی تھی۔ اگلے دن وہ گھر سے اسکول جانے کے لیے نکلی، لیکن اسکول جانے کی بجائے وہ تیمور کے ساتھ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ تیمور کو اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ رکشے پر سفر کر رہی تھی۔ رکشہ روڈ پر رکوانے کے بعد اس نے کرایہ دیا اور آگے تنگ گلیوں میں چلنے لگی۔ ایک ٹوٹے پھوٹے دروازے کے پاس تیمور نے اسے روکنے کے لیے کہا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور جس نے دروازہ کھولا اسے یہ پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ وہ اس کی ماں تھی۔ انہوں نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ ماروخ؟ جی۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ امی، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی، بہت روتی تھی آپ کے لیے۔ میں آپ کے لیے بہت تڑپی ہوں میں۔ اتنے میں اس کی نانو بھی آ گئی۔ انہوں نے پوچھا، جمیلہ، یہ کون ہے؟ یہ میری بیٹی ہے ماروخ۔ بیٹی، تم یہاں کیسے پہنچی؟ انہوں نے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ تیمور اس سارے منظر کو خاصی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اسے ان لوگوں کو ملا کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ماروخ نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ابو نے اس گھر کا ایڈریس مجھے دیا تھا۔ مجھے اس سے پہلے آنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ آپ بتائیں، آپ دونوں گھر میں اکیلے رہتے ہیں؟ نانو ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ہاں بیٹا، اکیلے ہی رہتے ہیں۔ جب تمہارے باپ نے اپنی ماں کے کہنے میں آ کر تمہاری ماں کو طلاق دے دی تھی، تب تمہارے نانا ابو یہ صدمہ سہار نہیں سکے تھے۔ وہ کچھ ہی دن میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ ماروخ کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا۔ وہ دن اس نے ان کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ پھر گھر واپس آ گئی۔ اپنے کپڑے، کتابیں اور ضروری سامان اس نے ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور سوتیلی ماں کو بتایا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا رہی ہے۔ سوتیلی ماں تو اس سے پہلے ہی خائف تھی۔ دل ہی دل میں اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ زبان سے کہہ کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ اگلے دن ماروخ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ وہ جب اس دن آئی تھی تو اس نے اپنی امی اور نانا کے حالات بھی دیکھ لیے تھے۔ امی سلائی کرتی تھی، نانا کی پینشن معمولی سی تھی، ان کا بہت مشکل سے گزارا ہوتا۔ تیمور نے انہیں اچھی خاصی رقم دی تھی اور کہا تھا کہ یہ اپنی امی کو دے دینا۔
और उन्हें कहना कि अब्बू का प्राइस बांड निकला था और उन्होंने ये पैसे मुझे दिए थे, ये मैंने संभाल कर रखे हुए थे, ये आप ले लें और इनसे एक बुटीक खोल लें। उसकी अम्मी इस गैबी मदद पर खुदा का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने आधे पैसों से घर में ही कपड़ों की एक छोटी सी बुटीक खोली और आधे पैसे सेव कर लिए। वो साथ सिलाई का काम भी करती थी। उनका काम बहुत अच्छा जा रहा था, घर में खुशहाली आ रही थी। यहाँ उसे डांटने वाला कोई भी नहीं था। बहुत वक्त के बाद अपनी माँ से मिली थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी ज़िंदगी बहुत मज़े से गुजर रही थी। ज़िंदगी में ना कोई फिक्र थी ना तंगी। उस दिन मैं अम्मी के सर में तेल का मसाज कर रही थी, साथ ही अपने बचपन की बातें भी कर रही थी। जब मैंने उनसे पूछा, अम्मी मेरी कलाई पर ये निशान कैसा है? उन्होंने कहा, जब तुम पैदा हुई थी तो ये निशान तुम्हारे बाजू पर था। उन्होंने मज़ीद बताया कि जब तुम पैदा होने वाली थी तो मुझे बहुत अजीब ख्वाब आते। कभी नूरानी सूरत बुज़ुर्ग ख्वाब में आते, कभी एक बहुत ही खूबसूरत औरत ख्वाब में आती थी। वो मुझे कहते थे कि इस बच्ची का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, हमें इसकी मदद की ज़रूरत है। हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही नेक बुज़ुर्ग थे। मैंने उनसे अपने ख्वाबों का तज़किरा किया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बड़ी होकर कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम देगी। मैं उनकी बातों से हैरान हूँ और ये सब कुछ सुन रही थी। मुझे अब्बू ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। ये सब उससे अगले दिन की बात है। सोते हुए मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा। एक बहुत दिलकश औरत मेरे ख्वाब में आती है। उसने खूबसूरत पाँव को छूता सफ़ेद रंग का फ़राक पहना होता है, सर पर सफ़ेद नगों वाला ताज होता है। वो मुझे देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, तैयार रहो, तुम्हें जल्दी हमारी मदद के लिए आना होगा। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैंने इसे अपना वहम समझा और सोचा कि शायद अम्मी की बातों को सोचने की वजह से मुझे ऐसा ख्वाब आया है। मैंने उस ख्वाब का जिक्र किसी से नहीं किया। मैं अम्मी और नानू के सोने के बाद तैमूर के साथ उसकी दुनिया में जाती थी। मुझे वो दुनिया बहुत पसंद थी। मैं इस बात पर हैरान थी कि हम जिन्नात के बारे में जैसा सुनते हैं, ये लोग तो उससे भी उलट हैं। जब इस बात का जिक्र मैंने तैमूर से किया तो वो हंसने लगा। ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारी दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी, बुरे भी, नेक भी और बद भी, फरिश्ता सिफत भी और शैतान सिफत भी। ऐसे ही हमारी दुनिया में भी मुसलमान जिन्नात हैं और हर तरह के जिन्नात हैं। उनमें से कुछ शरीर भी हैं जो नापाक जिन्नात होते हैं। वो तो है ही खबीस। तुम्हारी दुनिया में जिन लोगों को चिमट जाते हैं या जिन तंग करते हैं तो वो शरीर जिन्नात होते हैं, या फिर वो जादूगर की तरफ से मुसल्लत किए गए होते हैं। बाज़ औक़ात अच्छे जिन्नात भी जादूगर की कैद में चले जाते हैं और फिर उन्हें जादूगर जैसा हुक्म देता है उन्हें वैसा करना पड़ता है। अब समझ आ गई तुम्हें? वो मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाकर बोला। आज भी हम जादुई कालीन पर जा रहे थे। आज चांद की 14वीं रात थी। हर तरफ चांदनी बिखर रही थी। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। मैं मबहूत होकर नज़ारा देख रही थी और आंखों के रास्ते से दिल में उतार रही थी। ये क्या है? मैं तैमूर की आवाज़ पर चौंकी। कहाँ पर? वो मेरी कलाई की तरफ इशारा करते हुए बोला। जो मैंने बाजू ऊपर करके देखा तो वहाँ पर जो चांद का निशान था उससे रोशनी निकल रही थी। मैं हैरान होकर तैमूर की तरफ देखने लगी। वो मुझे देख रहा था। तुम बता सकती हो कि ये क्या है? नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या है। मेरी अम्मी ने बताया था कि ये पैदाइशी निशान है। मैंने उस दिन बाबा जान से इस बारे में पूछना था लेकिन भूल गया। आज मैं उनसे लाजमी पूछूंगा। वो एकदम से परेशान नजर आने लगा। अगला नज़ारा और भी हैरान कुन था। ये रोशनी तेज से तेज तर होती जा रही थी, सीधा आसमान की तरफ जा रही थी। अचानक आसमान से एक उड़न तश्तरी नमूदार हुई। उसकी स्पीड बहुत तेज थी। वो एक ही पल में हमारे पास आकर रुक गई। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते हमें उस तश्तरी में खींच लिया गया। उसके अंदर गिरते ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक बिस्तर पर लेटी थी और मेरे पास एक लड़की खड़ी थी। उसका सर झुका हुआ था और उसके हाथ बंधे हुए थे, यूं जैसे वो मेरी बांदी हो और मेरे हुक्म की ताबेदार। कुछ पल तो मुझे ये समझने में लगे कि मैं कहाँ पर हूँ। जैसे ही मुझे याद आया मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आपको मलिका चांदनी ने बुलाया है।
मलिका चांदनी? वो कौन है और उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? मलिका चांदनी चांद की मलिका है और आप इस वक्त हमारी सरजमीन पर हैं। और मलिका चांदनी ने आपको क्यों बुलाया, इस बात का जवाब नहीं दे सकती। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। इसका मतलब है कि अब मैं चांद पर हूँ? उस लड़की ने इस बात में सर हिलाया। मैं मलिका चांदनी से मिल सकती हूँ? मैं उनसे पूछकर आपको बताती हूँ। वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो अंदर आकर बोली, आपको मलिका ने अपने दरबार में बुलाया है। वो आगे चलते हुए मेरी रहनुमाई करने लगी। जब मैं दरबार में पहुंची तो उस औरत को मैंने तख्त पर बैठे देखा जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, चांद की सरजमीन पर चांद की मलिका आपको खुश आमदीद कहती है। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर इस तरह से लाना पड़ा, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ा। हमें एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। उस मुसीबत से आप ही हमें छुटकारा दिला सकती थी, मगर कैसे? मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम आम इंसान नहीं हो, तुम बहुत ख़ास इंसान हो। तुम इस ख़ास ज़ात की ख़ास खड़ी में पैदा हुई हो। तुम में एक ऐसी पावर है जो किसी और मखलूक के पास नहीं है। ऐसी कौन सी पावर है वो? मैं हैरान हो रही थी कि कौन सी अलिफ लैलवी दास्तान सुना रही है। तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी जिस कलाई पर चांद का निशान है उसे इस ज़मीन पर रखो। मैंने ऐसा ही किया। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे बिजली मेरे वजूद में कौंध गई हो। मुझे अपने वजूद में तब्दीली साफ महसूस हो रही थी। मलिका चांदनी खुश होते हुए बोली, मुझे यकीन है आप हमारी मदद ज़रूर करोगी। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? इस मखलूक का जो सरदार है वो बहुत ही जालिम और सरकश है। अगर वो इस ज़मीन पर आ गया तो यहाँ पर कत्लो गारत आम कर देगा। 20 साल से वो इस सरजमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। उसने अपने पास बहुत ताकतवर फौज जमा कर ली है। वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। अगर वो सरदार कत्ल हो जाता है तो उसकी आवाम उसको काबू करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एक ख़ास अमल के ज़रिए पता चला लिया था कि इस सरदार से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उन्हें पता चला था कि एक आदमज़ात लड़की होगी, उसकी कलाई पर चांद का निशान बना होगा, ठीक वैसा ही निशान जैसा उस सरदार के माथे पर बना हुआ है। अगर वो अपनी कलाई के निशान को उसके माथे के निशान के साथ मिला देगी तो उसकी सारी ताकतें उस लड़की में आ जाएंगी। फिर सरदार को कत्ल करना आसान हो जाएगा। मारूख ये सुनकर परेशान हो गई। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस सरदार को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि तुम उसे कत्ल करने की नीयत से आई हो। हम तुम्हें उस सैयारे पर पहुँचा देंगे और जो तुम्हारे साथ एक जिन ज़्यादा था उसे हमने उसकी दुनिया में पहुँचा दिया है। इस सरजमीन पर कोई जिन ज़्यादा नहीं रह सकता, उसे हमने तमाम हकीकत बता दी है। लेकिन घर में मेरी माँ और नानू हैं, जब मैं घर नहीं जाऊँगी तो वो परेशान हो जाएंगी। मलिका चांदनी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम्हें इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसका भी बंदोबस्त कर लिया है। फिर मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया ताकि मैं आराम कर लूं। फिर मुझे दूसरे सैयारे पर जाना था। इसके लिए उन्होंने मुझे एक लोहे का लिबास दिया। मैं उसे देखकर शशदर रह गई। मैं इस लिबास को कैसे पहनूंगी? पहनना तो पड़ेगा क्योंकि उस सैयारे पर लोग यही लिबास पहनते हैं। अगर तुम नहीं पहनोगी तो साफ पहचानी जाओगी कि तुम इस सैयारे की नहीं हो। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि किस मुसीबत में फंस गई हूँ। फिर मैंने अपनी सोच पर खुद को झिड़का। किसी की मदद करना तो नेकी का काम है। मेरे साथ वही खादमा गई थी, उसने भी मेरी तरह लोहे का लिबास ज़ेबतन किया था। उस लिबास में हमारी आंखों से ऊपर वाला हिस्सा साफ नज़र आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आंखें बंद करो। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो ये अजीब सी जगह थी। मेरे साथ वही खादमा थी। मैं हैरानी से उस अजीब व गरीब जगह को देख रही थी। उसने मुझे टोका और कहा, ऐसे हैरानगी से मत देखो वरना वो समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर नए आए हैं। हमने खुद को यहाँ का रिहायशी जाहिर करना है। लेकिन मुझे तो उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं दिल ही दिल में डर रही थी। मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ होगा। मुझे पता है मैं इसीलिए साथ आई हूँ ताकि तुम्हारी रहनुमाई करूँ। मेरे साथ आओ। सरदार ने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया हुआ है। हमें उस तक पहुँचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चलते चलते हम एक जगह पर आ गए। यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे, औरतें, मर्द, लड़कियाँ और बच्चे थे। सबने एक ही जैसे लिबास पहने थे और एक ही जैसे लग रहे थे।
ہم بھی ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جو باتیں کر رہے تھے انہیں سن کر ہم دونوں نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ چاند کی سرزمین پر آج حملہ کرنے والے تھے، اس کے بارے میں وہ لوگ بہت ساری تیاریاں کر رہے تھے۔ مجھے اس خادمہ جس کا نام زنتوشا تھا اس نے کہا کہ ہمارے پاس بس یہی چند گھنٹے، اگر ہم نے ابھی بھی کچھ نہیں کیا تو یہ ظالم سردار ہماری سرزمین پر قبضہ کر لے گا۔ تم ہی بتاؤ زنتوشا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا، میرے پیچھے آؤ، جہاں پر سردار ہے ہم نے وہاں پر جانا ہے اور اس کے اکیلے ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ جب وہ اکیلا ہوگا تو تم نے بہانے سے اس کے پاس جانا ہے اور اپنی کلائی اس کے ماتھے پر لگا دینی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ تب تک تم ان سب سے زیادہ طاقتور بن چکی ہوگی۔ ہم باتیں کرتے کرتے اس طرف جا رہے تھے جس طرف سردار گیا تھا، اور زنتوشا کو ایک بہانہ سوجا۔ ہم دونوں کچن میں چلی گئی۔ وہاں ایک خانساماں تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ سردار نے کھانا مانگا ہے۔ ہم دونوں ٹرے میں کھانا لے کر سردار کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کے کمرے تک پہنچ گئے۔ وہاں پر 3 لوگ اور بھی تھے۔ سردار نے ہمیں گہری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ کھانا یہیں پر رکھ دو۔ تب وہ باقی تینوں کمرے سے چلے گئے تھے۔ زنتوشا نے سردار سے کہا کہ سردار، آپ سے مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ آپ نے آج چاند کی سرزمین پر حملہ کرنا ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے کچھ ہدایات لینی ہے۔ سردار پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں نے اس کی بے خیالی کا فائدہ اٹھایا، اچانک سے اپنی کلائی پر بنا نشان اس کے ماتھے کے نشان کے ساتھ ملا دیا۔ سردار چیخنے چلانے لگا، دھوکا ہو گیا میرے ساتھ، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ اتنی دیر میں زنتوشا نے سردار کی تلوار نکال لی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سردار کی آواز سن کر بہت سارے خادم وہاں جمع ہو گئے، لیکن وہ ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم نے ان کے سردار کو مار دیا تھا، اس لیے ہم ان کے سردار تھے اور انہیں ہمارا حکم ماننا تھا۔ زنتوشا نے میرا ہاتھ پکڑا اور غائب ہو گئی۔ اب میں دربار میں کھڑی تھی۔ میرے سامنے کھڑی ملکہ چاندنی خوشی سے کہکے لگا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، بتاؤ کیا مانگتی ہو؟ جو تم کہو گی وہ تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ میں محض مسکرا کر رہ گئی۔ میں نے یہ کام کسی لالچ کے لیے نہیں کیا تھا، نہ ہی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تمہاری دیانتداری مجھے بہت پسند آئی۔ چلو تمہاری مرضی سے نہ صحیح، میں اپنی مرضی سے تو تمہیں انعام دے سکتی ہوں۔ اس نے چاندی کے 2 بڑے بکسے میرے حوالے کیے۔ اس میں ہیرے، جواہرات، سونا چاندی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، آپ کا بہت شکریہ، لیکن یہ میرے کسی کام کے نہیں۔ میں امی اور نانو کو ان کے بارے میں کیا بتاؤں گی کہ کہاں سے آئے ہیں؟ اس کا بھی ایک حل ہے، تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک چھوٹی سی پوٹلی دی اور ملازمہ سے کہا کہ ان بکسوں کو اس پوٹلی میں ڈال دو۔ میں حیران رہ گئی، اتنی چھوٹی سی پوٹلی میں یہ کیسے آئیں گے؟ یہ جادو کی پوٹلی ہے، اس میں تم جو چاہے ڈال سکتی ہو اور اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکتی ہو۔ پھر میں نے ان سے اجازت چاہی۔ وہ اصرار کرنے لگی، کل ہمارا جشن ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ضرور اس میں شرکت کرو۔ میں نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ مجھے امی اور نانو کی یاد آ رہی ہے۔ میں الوداع کہہ کر ان سے گلے ملی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گئی ہوں، جب تم اپنی دنیا میں واپس جاؤ گی تو یہ چاند کا نشان تمہاری کلائی سے مٹ جائے گا اور یہ طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ میں پھر اسی اڑن تشتری میں واپس آ گئی۔ اس تشتری نے مجھے گھر کی چھت پر اتارا اور واپس چلی گئی۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو اپنی جیسی شکل کی لڑکی کو لیٹے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، لو تم آ گئی، اب میری ڈیوٹی ختم۔ تم ہو کون؟ اور بالکل میرے جیسی ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں ملکہ چاندنی کی خاص ملازمہ ہوں۔ میں تمہاری ہم شکل نہیں ہوں، بس میں نے تمہاری صورت اپنائی ہوئی ہے تاکہ تمہیں غیر موجود پا کر تمہارے گھر والے پریشان نہ ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلی گئی۔ میں بستر میں لیٹ کر گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن 3-4 دن میں تیمور کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ مجھے دل ہی دل میں پریشانی ہونے لگی۔ اتنے دن سے وہ کیوں نہیں آ رہا؟ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اور مجھے اسے بلانے کا طریقہ بھی نہیں پتا تھا، نہ ہی میں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی تھی، لیکن
अब मैं उसे बहुत याद कर रही थी। मुझे उसकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। उसने ना आना था ना वो आया। मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। आगे कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया। ये एक बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज था। यहाँ को एजुकेशन थी। मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर मुझे जानने वाली कोई भी लड़की नहीं थी। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहती थी और इर्द गिर्द अपना बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। हमारी ही क्लास में एक लड़का पढ़ता था। वो एक बिगड़ा हुआ अमीर रईसज़ादा था। लड़कियों के साथ दोस्ती, फ्लर्ट, उनके साथ टाइम पास करना, ये सब मशागिल थे उसके। पिछले कुछ दिनों से वो मुझ में दिलचस्पी लेने लग गया था। मैं उसे नज़रअंदाज करती रही। एक दिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं उसे गुस्से से झिड़क कर आगे जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया। मैं अब वैसे भी पहले वाली कम एतमाद डरपोक लड़की नहीं रही थी। एक चांटा मैंने उसके मुंह पर रसीद किया और आगे चली गई। वहाँ पर जो लड़के और लड़कियाँ मौजूद थी वो उस पर हंसने लगे और उसका मजाक भी उड़ाने लगे। वो तो गुस्से से ही खोल उठा और मुझे धमकी देने लगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसकी धमकी को ज़्यादा सीरियस ही नहीं लिया और अपनी रूटीन में मसरूफ़ रही। मैं रिक्शे में आती जाती थी। उस दिन छुट्टी के बाद मैं अपने घर वापस जा रही थी। हमारा रिक्शा जब थोड़ी सी सुनसान जगह पर पहुंचा तो एकदम से हमारे सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। उसमें से 2 नकाबपोश मर्द निकले और मुझे उठाकर गाड़ी में डाल के नामालूम जगह पर ले गए। उन्होंने मुझे कोई चीज़ सुंघा दी थी जिससे मुझे कोई होश नहीं रहा। अब मुझे होश आया तो मैं एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। मेरे मुंह पर टेप लगी हुई थी। न जाने मैं कितनी देर बेहोश रही थी। मेरा जहन अम्मी और नानू की तरफ चला गया। वो मेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही होंगी। मेरे साथ ये क्यों हुआ था और मुझे आखिर किसने अगवा किया था? मैं ये बात समझने से कासिर थी। मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, तो ये सब कुछ किसने किया होगा? थोड़ी ही देर के बाद मुझे मेरे तमाम सवालात के जवाब मिल गए। जब मैंने दरवाजे से अंदर आते उस लड़के को देखा, वो वही था जिसको मैंने उस दिन थप्पड़ मारा था। मुझे देखकर वो शैतानी अंदाज में कह के लगाने लगा, उस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे कॉलेज भर में रुसवा किया था। आज मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का सारा बदला लूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि जब इंसान रुसवा होता है तो उसे कैसा महसूस होता है। ख़तरनाक अज़ाइम से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी तो आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। न जाने अब ज़िंदगी कौन सा नया रुख दिखाने लगी थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला को याद करने लगी। इससे पहले कि वो मेरे पास आता, ज़ोर का एक झटका लगा और वो दूर जाके गिरा। मैं तो खुशी से खिल उठी। मैं समझ गई थी कि तैमूर आ गया है। थोड़ी ही देर के बाद तैमूर मेरे सामने हाजिर हो गया था और वो बुरी तरह से उससे पीटने लगा था। जब तक वो लड़का नीम बेहोश नहीं हो गया था, तैमूर उसे मारता ही रहा। फिर वो मेरे पास आया, मेरे हाथ और पाँव खोले। मैं जज्बाती होकर उसके गले से लगकर रोने लग गई। अगर वो ना आता तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो जाता। उसने फिर आहिस्तगी से मुझे खुद से अलहदा किया और पूछने लगा, तुम ठीक हो? फिर मुझसे कहने लगा कि अपना हुलिया ठीक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। मैं घर आई तो अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे देखते ही मेरे पास आ गई और पूछने लगी कि इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने उनसे एक्सीडेंट का बहाना किया। एक्सीडेंट का सुनकर तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से समझाया कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे घर छोड़कर तैमूर उसी वक्त वापस चला गया था। रात को फिर अम्मी और नानू के सोने के बाद वो दोबारा आया और अपनी गैर हाजिरी का सबब मुझे बताने लगा। तैमूर कहने लगा कि यहाँ पर एक जादूगर था जो उसकी ताक में लग गया था। वो तैमूर को हासिल करने के लिए एक अमल करने लगा था, लेकिन तैमूर को इस बात का पता चल गया था।
इसीलिए उसने इस दुनिया में आना ही छोड़ दिया था। अमल करते हुए फिर उस जादूगर से एक गलती हो गई थी और वो खुद ही मौत के मुंह में चला गया। जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुम्हारी अम्मी को शदीद परेशान देखा। जब मुझे पता चला कि तुम तो अभी तक घर ही नहीं आई हो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा, हर जगह तुम्हें तलाश करना शुरू कर दिया। फिर बहुत ही मुश्किल से मैं उस जगह तक पहुंचा। तैमूर मुझसे पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे साथ उस लड़के की किस बात पर दुश्मनी थी। मैंने उसे मुख्तसरन सारा वाकया सुना दिया। उसने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक किया है, अब वो लड़का कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे पास एक बुरी खबर भी है। वो क्या? मैंने हैरानी से उससे पूछा। वो ये कि बाबा जान मेरी शादी कर रहे हैं, फिर शादी के बाद ही उसके साथ साथ मेरी दस्तार बंदी भी हो जाएगी। वो नज़रें चुराते हुए मुझसे ये बोला था। ये बात सुनकर तो मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन अब ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती थी कि तैमूर एक जिनजाद है और मैं एक आदमजाद हूँ। हम दोनों का मेल मिलाप मुमकिन ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराई, ऊपरी दिल से उसे मुबारकबाद दी। उसके बाद वो इधर उधर की बातें करता रहा और फिर थोड़ी ही देर के बाद वापस चला गया। अगले दिन फिर कॉलेज से वापस आते हुए मैंने अपनी सौतेली माँ को देखा। वो बहुत ज़्यादा बुरे हालों में थी। फटे पुराने कपड़े पहने हुए वो एक जगह पर भीख मांग रही थी। मुझे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उनकी मदद करूँगी। रात को फिर जब तैमूर आया तो मैंने उससे ये बात कही। वो मुझे लेकर उनके घर चला गया। मैंने अपनी पोटली से कुछ जेवरात निकाले और अपनी सौतेली माँ के सराहने रख दिए और वहाँ से वापस आ गई खुद। अगले दिन मुझे तैमूर की ज़ुबानी पता चला कि मेरी सौतेली माँ उन जेवरात को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और देने वाले को बहुत दुआएं दे रही थी। मुझे ये सब सुनकर एक अनजानी सी खुशी हुई थी। उसके बाद कुछ दिनों तक तैमूर की शादी भी शुरू हो गई थी। मैंने उसकी शादी की तमाम तर रस्मों में शिरकत की। मुझे लेने के लिए उसके ख़ास मुलाजिम आते थे। फिर शादी के बाद तैमूर ने हमारे घर भी आना कम कर दिया, क्योंकि वो अपनी सुल्तनत का बादशाह जो बन गया था और अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। उसने मुझे एक अंगूठी दी थी और कहा था कि जब भी मुझे उसकी ज़रूरत हो इस अंगूठी को अपनी हथेली पर रगड़ना तो मैं आ जाऊंगा। अब मुझे जब भी उसकी ज़रूरत होती थी मैं उसे बुला लेती थी और जब मैं किसी गरीब को देखती तो उसकी ज़रूर मदद किया करती थी। अम्मी ने भी मेरी अपने रिश्तेदारों में एक जगह शादी कर दी थी। अब मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी। सच कहते हैं, ज़िंदगी में अगर मुश्किलात आती हैं तो ज़िंदगी में आसानियाँ भी आती हैं। हमें मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, हमें हालात का मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।